सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Harinam Sankirtan ki, Prabhupada ki. Hare Krishna. Thank you very much. I hope it was audible. How many of you would some of you like to chant the Hare Krishna Maha Mantra few times? आप में से कोई chanting करना चाहेगा? Would you like to raise your hands and sing one line Hare Krishna Maha Mantra? It would be very nice. Yes, starting with Anil Prabhu. Okay, yes, Prabhu. Please unmute. Let's sing one time. One Maha Mantra. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Very nice. Thank you. Okay, let's hear from Dushyant Prabhu once. Dushyant Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. Please sing. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। Okay, it was little bit changed. Hare Krishna Maha Mantra is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. But you sing it very well. Thank you, Prabhu. You are a good singer. Anyone else? Quickly. Okay, Sheila Mataji wants to sing. Yes, Mataji, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very nice. Thank you. Thank you, Sheila Mataji. Beautiful. It was very nice. Sanjay Prabhu, please unmute. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Beautiful. Thank you. Thank you, Prabhu. Very nice. Renu Mataji, quickly. We will have two more people singing. Renu Goyal Mataji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very nice. Thank you. Thank you. Siddhi Dhama. Yes, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wow, very nice, little girl. You are in which class? Third tulip. Okay, very nice. You sing it very well. Okay, last, Anjali Mataji. Yes, thank you, Siddhi. Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Hare. okay, thank you. Thank you very much, Anjali Mataji. It was with music because of the network. So okay, warm welcome once again. स्वागत है आप सबका और हम आगे चलने का प्रयास करेंगे अपने भगवत गीता के डिस्कशंस में. एंड सो ऑफ कोर्स वी स्टार्ट विद इन्वोकेशन प्रेयर्स. आप सब ये प्रेयर्स अपने भगवत गीता के स्टार्टिंग में देख सकते हैं और यू कैन सिंग इट लाउडली एज वेल. सो लेट अस क्विकली with full heart sing this beautiful prayers to the Supreme Lord and the Parampara. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Sapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Utapad Kamalam Shri Guru Vaishnavasya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Shahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priyai. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuveva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shamavadi Paschatya Deshadarine. Hare Krishna. Thank you very much. So today we will have more time for questions and discussions as we said last time. Anubhav Prabhu, are you there? Anubhav Prabhu is on the tour right now. He is visiting Dwarka. Prabhuji, I am there, but Okay. network is not very good. Okay, sure. So we will start then, Prabhu. Thank you very much for being there. Are you on the way? Yes, Prabhu. Okay. On the way back from Dakot Dham to Ahmedabad.
Okay, okay, very nice. Thank you, Prabhu, for joining us, and glad to hear Prabhuji is on the journey. Still, he is connecting. So, we want to spend more time to have question answers if you have. Otherwise, we have some interesting discussions today as well. तो हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स आज लेना चाहते हैं सो दैट यू नो एनी डाउट्स फ्रॉम द प्रीवियस सेशंस, पहले के जो भी हमने सेशन कवर किए हैं, अगर आपको उसमें से कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं. बट बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन आंसर्स, आई एम श्योर यू विल हैव सम क्वेश्चंस. Before going to question answers, just 1 second. Sadanand Prabhu, can you? And also, sorry. So, question answers पे जाने से पहले, I wanted to share this that yes, yesterday was Holi, and I am sure कि आप सबने खूब सारा कलरफुल होली सेलिब्रेट किया होगा, एक दूसरे को ग्रीट किया होगा. But then we wanted to discuss little bit about yesterday's festival first, and then if you have any questions, so I will take couple of minutes. Should we discuss about Holi first? Yes? No? Yes. Okay, some of you are raising your hands and indicating yes. So these festivals are very important. ये जो festival हैं ये बहुत important हैं, and sometimes we become so much absorbed in the celebrations related to that festival. कभी कभी उस फेस्टिवल से संबंधित जो सेलिब्रेशन है, जो हमारा एक्टिविटी पार्ट है, उसमें हम इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि हम उस फेस्टिवल का जो ओरिजिन है या जो उस फेस्टिवल का जो मेन एसेंस है, समटाइम वी मिस दैट ऑल्सो. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. आप सब जानते हैं एक बहुत फेमस डे है जिसको बोलते हैं वैलेंटाइन डे. सुना है आपने वैलेंटाइन डे? आई एम श्योर सबने सुना होगा. यस और नो? तो आई कैन सी स्माइल्स ऑन सम फेसेस जैसे वैलेंटाइन डे का नाम लिया, क्योंकि वैलेंटाइन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में. ए बॉय ही विल गिव ए रोज फ्लावर टू ए गर्ल और वाइस वर्सा, एंड यू नो इट इज कंसिडर्ड लाइक ए festival. Okay, I love you, and another person will say I love you, like that. Yes or no? और सब लोग को पता है कि रोज देने का एक ट्रेंड है वैलेंटाइन फेस्टिवल में. Yes or no? But if you go to the history of this festival, Valentine Day, अगर आप वैलेंटाइन डे की हिस्ट्री में जाएंगे, it is quite different than just giving a rose. Actually, Valentine जो थे एक he was a great saint. वैलेंटाइन जो है एक महान संत का नाम था, और उनका जो सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस लव, सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन था, टू एक्नॉलेज दैट ये वैलेंटाइन डे शुरू हुआ था. एंड द बेसिस ऑफ द फेस्टिवल वाज द लव, द सेल्फलेस केयर दैट ही हैड. लेकिन बहुत जल्दी वो फेस्टिवल, वो जो लव है, वो लव जो है वो आई लव यू में बदल गया, और वो एक रोज फ्लावर देने का एक ट्रेंड बन गया. एंड नाउ नो वन इवन नोज, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि देयर वाज ए सेंट कॉल्ड वैलेंटाइन जिसके नाम से वो फेस्टिवल बना रहे हैं. सिमिलरली इन होली समटाइम्स और इन दिवाली वी बिकम so much absorbed playing with the colors. Of course we should play with the colors, we should have some colors, हम एक दूसरे को कलर से ग्रीट करें, but there is much more message behind these festivals. तो जो होली फेस्टिवल था yesterday, कल का जो फेस्टिवल था, it has two very strongly connected spiritual facts. इस फेस्टिवल से दो बहुत ही important आध्यात्मिक फैक्ट्स जुड़े हैं. पहला, कोई बता सकता है आप में से? वुड एनीवन लाइक टू टेल कि होली को हम कलर से तो खेल रहे हैं, विच इज वेरी नाइस, लेकिन होली से जुड़ा हुआ स्पिरिचुअल फैक्ट्स कोई बता सकता है? एनीवन? आई वुड लाइक टू
ask you for your participation. आप सब लोग प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए. मुझे पता है कल के फेस्टिवल का तो जरूर पता होगा. इट वॉज नॉट लाइक वैलेंटाइन जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन होली के बारे में तो जरूर लोगों को पता होगा. ओके, सो वी हैव सम हैंड्स अप. लेट्स हियर फ्रॉम दिव्या. ओके, यस दिव्या माता जी, यू वांट टू से कि होली फेस्टिवल का क्या सिग्निफिकेंस है? Hare Krishna Prabhuji, Tanmay Pranam. कृष्णा, यस प्लीज. Prabhuji, from this festival, we get love for others, and we meet others like our enemies also, and हम उन्हें कलर भी लगाते हैं. अपना जितना भी हम उनसे द्वेष करते थे, मतलब उस दिन हम सब भूल जाते हैं और सबसे प्रेम से रहते हैं. Okay, very nice. It is the festival of love also. Okay, very It's in the nice. color. So someone was saying that HOLI, holy, holy is hate out. H means hate, O means out, and L means love, and I means in. Hate out, love in. Correct? So this is also a beautiful explanation. But we also have some very nice spiritual facts which are connected. और of course ये festivals हमारे life में एक change लाने का opportunity होता है ना, क्योंकि हमारा जो normal routine होता है उसमें हम इतना ज़्यादा activities में involved रहते हैं that we don't see any opportunities to bring some big changes in our life. लेकिन ये जो festivals होते हैं ये ना केवल एक celebration, ना केवल एक दूसरे पे कलर फेंकना, they bring lot of opportunity where we can think about, we can reflect, and we can bring some very positive changes in our life. Yes or no? तो हमारे पास एक बहुत अच्छा opportunity आता है कि stop, you are running, stop for a minute, think about what change you can bring, and maybe the change is connected to that festival. We can think about some positive change, just like ये आपने बताया अभी, hate, that it is a festival of love. Holi is a festival of colors. Someone said in the message, accept all colors, like that, accept everyone, like that. So hatred should be thrown out and love should be brought in. Correct? Connected to Holi, there are two very nice pastimes. Okay, somebody has raised the hand. Let's hear from them. Deepshikha Sharma, Mataji, you want to say something about Holi? Yes. Please go ahead. There was a demon king Hiranyakshipu. He has a son named Prahlad. He worshipped Lord Vishnu in a very devotedly. So, but he used to stop him not to do this puja because he is a demon, and he tried to kill his own son 2-3 times, but he did not succeed. So at last he had a sister named Holika. He had a blessing from the god that she will not get burnt even if she sit in the fire. So he thought of a plan. He will make his son sit in her lap, and there will be they will sit on the fire, and the son will die, and the sister will remain as nothing has happened to her. But because he was a worshipper of Lord Vishnu, from his heart he was very devoted to Vishnu. So as we know, God always came to rescue the devotee. So the things get reversed, and Prahlad was not burnt in the fire, and the Holika died in this. Very nice. Thank you for sharing the pastime. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Yes, this is a beautiful explanation. So जो अभी explanation बताया दीपशिखा माता जी ने, so it is, the significance is कि those who are in the protection of the Supreme Lord, no one can hurt them. It says, there is a famous saying that Mare Krishna Rakhe Ke and Rakhe Krishna Mare Ke. That means if Krishna will protect someone, then who can kill him? And if Krishna wants to kill someone, then no one can protect him. So जिसको कृष्णा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसको कोई किल नहीं कर सकता है. तो of course this is कई लोग सोचते हैं कि ये माइथोलॉजी है, ये जो स्टोरीज है
Sometimes people think that these are some made up stories, but actually these are the histories, these are the great histories. और इसमें से कई सारी histories के अभी जो प्रूफ्स इवन हमारे जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि अभी हमारे अनुभव प्रभु जो द्वारका में है, सो इन द्वारका आई हैव हर्ड कि वहाँ पे जो बताते थे कि भगवान कृष्ण का जो महल थे, है ना, ही हैड 16,000 wives, 16,108 wives, and each queen had a palace. So it is known that the ruins of that palaces are still can be found in the ocean, or so those facts can even now be even scientifically we can check. तो कई बार लोग सोचते हैं माइथोलॉजी है, ये कल्पना वाली कहानियां हैं, बट दीज आर नॉट माइथोलॉजीज, दीज आर हिस्ट्रीज, दीज आर द ट्रू हैपनिंग्स. ऐसा घटना जो हुआ है उसको रिकॉर्ड किया गया है हमारे, और ये जो सो दे आर नॉट जस्ट इमेजिनेशन ऑफ सम ऑथर और लाइक दैट. तो अभी जैसे बताया कि ये होली का जो दिन है, ये होलिका दहन, विच इज द विक्ट्री ऑफ how Prahlad, who was not having any benediction like कि वो जलेंगे नहीं, या वो he will not die when he is thrown from a mountain, या फिर when he is thrown in a snake chamber, but Krishna was protecting Prahlad in all circumstances. So the Lord protects his devotees in his own way. So this was of course one festival, but there was one more very beautiful festival yesterday. और ये जो होली का फेस्टिवल था कल, इसका एक और नाम था which is called as गौर पूर्णिमा. What is that festival? आप में से किसी ने अभी चैट में भी लिखा है इस फेस्टिवल के बारे में, गौर पूर्णिमा. तो कल का जो दिन था वो था अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु. कल का जो दिन था वो श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, उनका कल के दिन वो प्रकट हुए थे. आप सब जानते हैं कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. तो भगवान बताते हैं भगवत गीता में दैट आई कम, मैं आता हूं, हर एक युग में मैं अवतरित होता हूं. जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में आते हैं, और द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, और ये जो अभी युग चल रहा है कलियुग, इसमें भगवान आते हैं किसके रूप में? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट होते हैं. और ये कब होता है? ये हुआ आज से लगभग 536 साल पहले, 536 years बिफोर. ये जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं टेम्पल, दिस इज ए प्लेस कॉल्ड मायापुर, जहाँ पे मैं पिछला 2 क्लासेस जहाँ से ले रहा था. तो वो जो प्लेस है वो चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपीयर हुए. जैसे कृष्णा अपीयर हुए मथुरा में, चैतन्य महाप्रभु अपीयर होते हैं मायापुर में, जो कि नवदीप डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है मायापुर. तो बट दिस अवतार, ये जो भगवान का अवतार है, उनका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है. भगवान के सभी अवतारों का कुछ कुछ स्पेशल पर्पस होता है. जैसे भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम. तो जो साधु हैं, जो सेंटली पर्सन्स हैं, उनको प्लेजर देने के लिए, उनको डिलीवर करने के लिए, और जो दुष्कृताम हैं, जो सिंफुल पीपल हैं, जो डेमोनियक पीपल हैं, उनको पनिश करने के लिए. और तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान क्या करते हैं? अवतारित होते हैं. तो ये जो अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि कल था, जैसे जन्माष्टमी हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वैसे ही कल का फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट था. गौर पूर्णिमा, यानी कि चैतन्य महाप्रभु, जिनका दूसरा नाम गौरांगा भी है, उनका कल
अपीयरेंस डे था, यानी कि कल के दिन वो प्रकट हुए थे। और कल बहुत बड़ा सुंदर सेलिब्रेशन था पूरे वर्ल्ड में, जो लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, इट हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस कि ये जो अवतार है, द लॉर्ड इज इन ए हिडन फॉर्म, गुप्त अवतार। भगवान के कई तरह के अवतार होते हैं, जैसे कि शक्तावेश अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार। हर एक टाइप के अवतार का कुछ सिग्निफिकेंस होता है। जैसे कि जो शक्तावेश अवतार होता है, उसमें भगवान एक पर्सनालिटी को, एक व्यक्ति को अपना एम्पावरमेंट दे देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा वेद व्यास का नाम, तो वेद व्यास जी जो है वो भगवान के शक्ता आवेश अवतार, यानी कि अपनी शक्ति भगवान उस पर्सनालिटी को दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड शक्ता आवेश अवतार। तो लेकिन ये जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, ये भगवान के क्या हैं, छन्न अवतार हैं। छन्न मतलब हिडन, यानी कि कॉन्फिडेंशियल अवतार है। बहुत सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को जस्ट एक साधु या सेंट के रूप में जानते हैं, सन्यासी के रूप में जानते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, जो शास्त्रों के हिसाब से, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण के अवतार हैं। ऐसा शास्त्र में बोला है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। सो चैतन्य महाप्रभु को भगवान के सबसे मर्सीफुल इनकारनेशन माना गया है, सबसे दयालु। भगवान के अलग अलग अवतार हैं और उनका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे मैंने बताया। और चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान के सबसे मर्सीफुल, यानी कि सबसे काइंड। आपको अगर जानना हो कि भगवान के सबसे काइंड अवतार कौन से हैं, जैसे भगवान नरसिंह देव आते हैं, भगवान वामन, भगवान मीन के रूप में आते हैं, परशुराम के रूप में आते हैं। लेकिन जो भगवान के सबसे काइंड और दयालु जो इनकारनेशन है, वो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इतना दयालु है, ही सो काइंड, कि वो किसी को भी, एनीवन विदाउट एनी प्रायर क्वालिफिकेशन, किसी भी क्वालिफिकेशन के बिना, one may be very sinful also, Chaitanya Mahaprabhu gives his mercy and accepts the fallen souls of this age. So therefore this ISKCON movement, जिसका हम ये आप सब सेशंस अटेंड कर रहे हैं, जो ये ISKCON या फिर गौड़िया परंपरा है, this is coming in line of Sri Chaitanya Mahaprabhu. और चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स हैं, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, उसके हिसाब से हम ये सारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सो इट इज वेरी सिग्निफिकेंट फेस्टिवल फॉर ऑल ऑफ अस। और आपने शायद चैतन्य महाप्रभु का फोटो देखा होगा। अभी ये जो हम प्रेयर्स बोल रहे थे, यहाँ पर भी ये आप देखेंगे, ये जो बीच में है येलो कलर में, येलो ड्रेस में, श्री कृष्ण चैतन्य। सो ही इज चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान के गौरांगा भी इनका नाम है। गौरांगा मतलब हु हैज ए गोल्डन और ए वेरी ब्राइट एंड ए फेयर कॉम्प्लेक्शन, जिनका रंग जो है वो मोल्टन गोल्ड की तरह है, जो तपते हुए सोने की तरह इनका कलर है, तप्त कांचन। और ये जो है स्वयं कृष्ण है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। और आप इनके राइट साइड में, भगवान के राइट साइड में जो ब्लू ड्रेस में है, दैट इज लॉर्ड नित्यानंदा। और ये नित्यानंद प्रभु जो है, ये जो है बलराम के अवतार हैं। तो कृष्णा एंड बलराम, द टू ब्रदर्स, दे कम एज लॉर्ड चैतन्य एंड लॉर्ड नित्यानंदा, जो हम गौर निताई बोलते हैं या निताई गौर बोलते हैं। तो दिस आर लॉर्ड चैतन्य एंड लॉर्ड नित्यानंदा. If you see the next to Lord Nityananda, the one who is having white dress and this blue shawl kind of, his name is Advait Acharya, and he is considered as incarnation of Mahavishnu. And if you look at toward the left side of Chaitanya Mahaprabhu,
with white clothes and uh, almost like a brown shawl. So this is called Gadadhar Prabhu. This is Gadadhar Prabhu, who is considered as incarnation of Sri Radhika, Srimati Radha Rani. And if we look at the extreme left of Sri Chaitanya Mahaprabhu in the orange shawl is Srivas Pandit, who is considered as the incarnation of Narada Muni. तो जब भी भगवान अवतरित होते हैं, जैसे भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, तो उनके साथ उनकी पूरी टीम, द लॉर्ड कम्स विद हिज फुल टीम ऑफ एसोसिएट्स मीन्स लॉर्ड्स, भगवान के जो निजी पार्षद होते हैं, हिंदी में हम पार्षद बोलते हैं, उनके जो टीम है उसके साथ अवतरित होते हैं. जैसे भगवान कृष्ण जब आते हैं तो बलराम जी ऑल्सो कम्स. इवन बिफोर लॉर्ड कम्स, यशोदा, मदर यशोदा, नंद महाराज, देवकी, वासुदेव, they all come. They first come and set the stage and then Lord performs his pastimes. वो सब आके एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं और फिर भगवान अपनी अलग अलग लीला जो है उसको करते हैं. इसी तरह चैतन्य महाप्रभु भी जब आते हैं, he does not comes alone. He comes with all his team, जिसमें जैसे हमने देखा चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, Advaita, Gadadhar and Shivas आदि, and there are many other associates of Lord. तो भगवान अपने पूरे टीम के साथ आते हैं और जो इस एज के जो फॉलन सोल्स हैं उनको क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं. तो कल ये ग्रेट फेस्टिवल था and we were celebrating this for the whole day. कल हमने सेलिब्रेशन, we started the celebration 4 AM or 4:30 AM and it went up till 10 o'clock in the night. तो कल पूरा दिन ये ब्यूटीफुल फेस्टिवल था. तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर ऑल वैष्णवास. और ये जो हमें भगवद गीता का शिक्षा मिल रहा है, जो इस्कॉन संस्था, ये जो हम संकीर्तन कर रहे हैं, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो ये जो कीर्तन ओरिजिन हुआ, जो कीर्तन का स्टार्टिंग हुआ, जो कीर्तन का जो रूट है, जो कीर्तन के फादर हैं, वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु. ये संकीर्तन मूवमेंट है, जो संकीर्तन इसको स्टार्ट किया किसने? श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान कृष्ण से अभिन्न है. सो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय. गौर पूर्णिमा फेस्टिवल की जय. तो हमने कल का फेस्टिवल आज थोड़ा सा डिस्कस कर लिया और अब हम चलते हैं आपके पास, आपके प्रश्नों की ओर. तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस. आपके जो भी अभी तक के क्वेश्चंस हो, फ्रॉम इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, चैप्टर 1, या फिर जो अभी मैंने फेस्टिवल्स के बारे में भी कुछ बताया, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अगर आपके क्वेश्चंस होंगे, वी कैन कंटिन्यू विद क्वेश्चंस. अगर आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी आंसर हो चुके हैं, देन वी विल मूव अहेड. ओके, सो फील फ्री एंड इट्स योर टाइम नाउ. क्योंकि मुझे कई बार लोग कहते हैं कि क्वेश्चंस नहीं हो पाते समय की वजह से, तो देन वी बीच बीच में हम ये स्लॉट रखेंगे 4-5 सेशंस के बाद एक सेशन क्वेश्चंस के लिए. ओके, लेट्स हियर सम क्वेश्चंस देन. वी हैव दिव्या माता जी आस्किंग क्वेश्चंस. यस माता जी, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क. Actually, Prabhuji, I want to share my yesterday's experience. Okay. So can I share? Yes, of course. Prabhuji, yesterday I have gone to Delhi ISKCON for playing Holi, and yesterday was Guru Purnima also, and Mahabhishek was there, and I was very happy to see the Mahabhishek and the Kirtan by the Prabhuji. Whatever I remembered, the Kirtan what the Prabhuji has done yesterday. Yesterday was a great day for me. I never forget yesterday, and we have seen play about the Lord Chaitanya, and most I like more the scene that is when a Pandit offered food prasadam to Lord, and Chaitanya Mahaprabhu came all the time to eat the prasadam, and when the Pandit said at the last time, I'm calling the God, and why did you come and eaten my all the food? Then what will I do? So and then Sri Chaitanya Mahaprabhu said that you always call me, and when I come, you said that why did you come? That so scene is my most favorite.
Wow, very nice. Thank you for sharing this. So, for those of you who don't know, so what Divya माता जी शेयरिंग कि कल का जो फेस्टिवल था उससे वो एक इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं अबाउट लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. सो शी सेज शी वाज आल्सो इन द फेस्टिवल सेलिब्रेशन. सो थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस. सो नाउ वी लुक फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चंस. थैंक यू फॉर शेयरिंग. यस, तो प्रश्न किस किस के हैं? Okay, we have question from Anil Prabhu. Yes, Prabhu, please. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, पंच तत्व में जो अभी बताया आपने कि गदाधर जी राधे जी के इनकारनेशन है और श्रीवास जी नारद जी के, तो जो अद्वैताचार्य जी हैं क्या वो किस के इनकारनेशन है? अद्वैताचार्य जी जो हैं, he is the incarnation of महाविष्णु. महाविष्णु, तो जैसे हमने एक बार डिस्कस किया था कि महाविष्णु हैं, गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई, अलग अलग टाइप्स के विष्णु हैं. तो जो महाविष्णु हैं वो अवतरित होते हैं एज अद्वैताचार्य. अद्वैताचार्य इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ सदाशिवा. तो इस तरह से अद्वैताचार्य जी का पोजीशन है. ओके, हरे कृष्ण. ओके, थैंक यू. दुष्यंत प्रभु का कुछ क्वेश्चन है. आई एम सरप्राइज्ड, आप लोगों कम ही लोगों के क्वेश्चन है. मुझे लग रहा था आज क्वेश्चंस के लिए बहुत सारा समय चाहिए होगा. ओके, बट इट इज गुड इफ यू नो एवरीथिंग. यस, हरे कृष्णा प्रभु जी. कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. यस प्रभु, वी कैन हियर यू. प्रभु जी, वैसे तो आप भी मुझे आपने अपने बारे में आपने बहुत कुछ बताया. मैं भी मतलब बहुत ज्यादा भगवान में विश्वास करता हूँ, मानता भी हूँ. लेकिन मेरा बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल है जो मतलब नॉन हिंदूज हैं. तो वो ये कहते हैं कि मतलब कैसे प्रूफ माने कि मतलब भगवान है. मतलब वो सभी धर्मों के लिए वो करते हैं, मतलब टाइट करते हैं कि क्रिश्चियन हो या सिख हो, हिंदू, मुस्लिम, कि मतलब कोई साइंटिफिक एक रीजन तो हो कि भगवान है, कैसे माने कि भगवान है इस संसार में. ओके, तो उनको मैं सेटिस्फाइड नहीं कर पाता. ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन. डज गॉड एग्जिस्ट? हम लोग इतना देर से भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमने तो देखा नहीं है भगवान को. हमने बात भी नहीं किया है ना. एटलीस्ट ज्यादातर लोगों ने तो नहीं देखा है भगवान को, है ना. तो फॉर ए ऑर्डिनरी पर्सन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि भगवान है भी कि नहीं ये समझ पाना. और आज का जो मॉडर्न टाइम है, हमें हर चीज के लिए एक साइंटिफिक सॉल्यूशन या साइंटिफिक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, करेक्ट, कि भगवान है. तो वैसे तो इसके लिए एक पूरा डेडिकेटेड सेशन है प्रभु. वी हैव ए कंप्लीट सेशन कॉल्ड डज गॉड एग्जिस्ट. वो हम जब सेशन करेंगे आप उनको इनवाइट कर सकते हैं. लेकिन जस्ट टू ट्राई टू आंसर इन ए वेरी ब्रीफ वे, इफ यू लुक एट, अगर आप इस पूरे यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन को देखेंगे, तो आप इस पूरे यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा जिसमें कि बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे गैलेक्सीज, बहुत सारे, and I am just giving one of the reasons. There are thousands of reasons and logical reasoning to understand God exists. One of them is, if you look at this gigantic universe, आपको ये पता होगा कि ये जो यूनिवर्स है, इट इज ए परफेक्ट कंट्रोल सिस्टम. यानी कि आप इस यूनिवर्स में देखेंगे कि बड़े बड़े प्लैनेट्स, जिसमें कि अर्थ, हमारा जो पृथ्वी है, वो एक छोटे से डॉट के समान है. अगर आप पूरे यूनिवर्स की बात करेंगे तो हमारा जो पृथ्वी है सरसों के दाने के समान है, इतना छोटा है. उसी पृथ्वी पर जिसपे इतने बड़े बड़े ये कंट्रीज और इतने बड़े बड़े ओशंस और रिवर्स, उसी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ. वही पृथ्वी एक छोटे से डॉट के समान है उस पूरे यूनिवर्स में. लेकिन आप देखेंगे कि इस पूरे यूनिवर्स में जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस पूरे यूनिवर्स का जो कंट्रोल है वो एकदम डिफाइंड है. जैसे कि फॉर एग्जांपल सूर्य, आप अभी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कल सुबह सूर्य उदय कितने बजे होगा. कल सुबह का ही नहीं, आप कई दिनों बाद तक का भी प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा. यू कैन एग्जैक्टली डिफाइन कि इस जो क्रिएशन में बड़ा बड़ा जो ये इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स का मोशन है,
इतने बड़े बड़े बॉडीज का जो पोजीशन है वो कब होगा। अब ये कब पॉसिबल है, ये डिटेक्ट हमारे, आप देखते हैं हमारे बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स, और ये साइंटिफिकली भी हम इसको, हमारे साइंटिस्ट भी जो है इसको वो करते हैं कि यस इस दिन सोलर एक्लिप्स होगा, इस दिन लूनर एक्लिप्स होगा। पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो भार है, वेट है 6 into 10⁻21 मेट्रिक टन्स है, जो पृथ्वी का भार है ये 6 into 10⁻21 मेट्रिक टन्स। और जो पृथ्वी की स्पीड है 1,06,000 किलोमीटर पर आवर। हमारी गाड़ी चलती है 100 की स्पीड पे, 120 की स्पीड पे, और पृथ्वी की स्पीड है 1,06,000 किलोमीटर पर आवर। इतना सारा बड़ा जाइजेंटिक सिस्टम होने के बाद भी आप देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम कंट्रोल में है। और इट इज क्वाइट लॉजिकल टू अंडरस्टैंड कि देयर शुड बी सम कंट्रोलर। जहां पर भी कंट्रोल सिस्टम, चीजें कंट्रोल में है, तो वहां पे सो वन कैन वेरी लॉजिकली अंडरस्टैंड दैट देयर इज ए कंट्रोलर। क्यों? जैसे कि एक स्कूल में जाते हैं, एक स्कूल में देखते हैं कि बेल बजा, बच्चे एक क्लास से दूसरी क्लास में गए, कोई टीचर इधर से उधर जा रहा है, सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है, तो आपको लगेगा देखो सब कुछ अपने आप सिस्टमेटिकली चल रहा है। लेकिन जब आप उसको अच्छे से समझेंगे स्कूल का स्ट्रक्चर क्या है, तो वहां पे एक कंट्रोलर है, पूरे स्कूल में कंट्रोलर है। कौन है? प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन है। ये कंट्रोल अपने आप नहीं चल रहा है। कोई एक बच्चा सोच सकता है कि मेरे स्कूल में तो सब कुछ अपने आप, लेकिन हर एक कंट्रोल के पीछे एक कंट्रोलर है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक ऑर्गेनाइजर है, हर एक लॉ के पीछे एक लॉ मेकर है। हो सकता है कि हम उसको अपनी नेकेड आई से देख पाएं या अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाएं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो यूनिवर्सल कंट्रोल है, ये किसी ह्यूमन बीइंग के हाथ में नहीं है। चाहे कोई बिल गेट्स हो, चाहे कोई अंबानी हो, कोई भी इस यूनिवर्सल अफेयर्स की चीजों को कंट्रोल नहीं कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर टू स्मॉल टू कंट्रोल, लेकिन ये पूरा सिस्टम कंट्रोल में है। सो हु इज कंट्रोलिंग दैट? हु इज मेकिंग दिस लॉ? जैसे कि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया, करेक्ट, लेकिन न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बनाया नहीं, ये लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो हर एक लॉ के पीछे एक लॉ मेकर होता है, लेकिन इस जो क्रिएशन में इतने सारे लॉज हैं, उसको बनाने वाले कौन है? दैट इज गॉड। सो ही इज दैट लॉ मेकर। आई एम गिविंग यू जस्ट ग्लिम्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसके लिए एक पूरा डेडिकेटेड सेशन है 1 to 1.5 hours का, विच वी कैन डू सम टाइम इन दिस क्लास। तो आप उन लोगों को उसमें इन्वाइट कर सकते हैं, और हम उस सेशन में बिना किसी स्क्रिप्चर्स का रेफरेंस दिए साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग की हेल्प से इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं बहुत आसानी से। यस, गॉड एग्जिस्ट। बिकॉज गॉड एग्जिस्ट, देयरफॉर देयर इज कंप्लीट कंट्रोल। पूरी सृष्टि में कंट्रोल है, पूरी सृष्टि में ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी सृष्टि में जो थिंग्स हैं दे आर मूविंग एज पर द प्लान। और ये जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। सो हु इज दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग हु इज कंट्रोलिंग दिस? सो देन वी कैन फाइंड दिस आंसर दैट यस, there is someone in control which is beyond, who has a power which is beyond our imagination. क्योंकि आप अर्थ की एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप प्लैनेट्स की मोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? तो देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू दिस, बट आई जस्ट गेव यू सम आइडिया. होप इट मेक्स सम इम्पैक्ट, बट देन when he will attend the full session, then he will be able to understand. Okay, does it make sense for you? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं टोटली मैं तो पहले से सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन इसका मुझे जो आप बता रहे हैं कि एक बड़ा सेशन है, वो मैं अटेंड करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि दूसरों को सेटिस्फाइड करने के लिए और अभी डीपली बताना पड़ेगा। Exactly, that's why I'm saying it's a big topic. लेकिन आपने पूछा है, I'm just giving you some ideas. So when we have that session, आप उनको भी invite कर सकते हैं, ताकि उनके भी जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, and then we can address. So there is a very beautiful presentation on that session. Does God exist? So जब भी सर जब वो सेशन हो, मुझे जब भी हो तो मुझे मतलब उसका लिंक या इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो। Absolutely, we'll share in this groups only, जो हम हमारे ग्रुप्स हैं. Okay,
थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. Okay, let's hear next from Seema. माताजी, you have some question? आपका कोई प्रश्न है? अभी तक हमने जो अभी भगवत गीता के चैप्टर्स पढ़ा उसमें किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। इसका दो रीजन हो सकता है, या तो आपने सब कुछ बहुत अच्छे से समझ लिया, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, और या फिर आप में से किसी ने पढ़ा ही नहीं। कौन सा रीजन है? हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ, 1 मिनट में पहले पूछ लूं कि क्या रीजन है कि किससे पूछें? रवि प्रभु से पूछते हैं। रवि प्रभु, is it because you understood it very well or you did not got time to study it? Prabhuji, Hare Krishna Prabhuji, I'm so sorry. I just didn't get time. I'm so sorry. Okay, no problem. Thank you for being But on. I have made my notes and I already got this presentation, in that WhatsApp group. So definitely this week I'm just going to read it, and I'm sure I will have more questions for the next session. Okay, sure. Thank you, Prabhu. Thank you for being honest. Thank you, Prabhuji. Okay, so then let's go to the next question from Shilpa Mataji. Yes, Mataji, please बताइए. Sorry, you need to unmute, please. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। Yes, Mataji. मुझे चैप्टर में से ही डाउट है। हाँ, good. Yes. श्लोक नंबर है 24। Okay, chapter 1. 1 चैप्टर 1 Okay. श्लोक नंबर 24। हाँ, तो क्या डाउट है? थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है उसमें। जैसे इसमें श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है, नींद पर जो जीत लेता है। Yes. तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है इसका। Can you read the text? यस, मैं वो श्लोक भी पढ़ूं मैं? हाँ, बिल्कुल। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयो रुभ्यो मर्दये स्थापयित्वा रथोत्तमा। Okay. Can you read? संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो तात्पर्य जो है इसका, इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव भी ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए हैं, और वह गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया, और वे फिर इस प्रकार बोले। Okay. तो जो इसमें नींद के बारे में कहा गया है, Sure. I will come. सोते हुए भी कृष्ण के लीलाओं के चिंतन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। Okay. Very nice. Thank you. So जो श्लोक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। इसका मतलब देखो, इन्होंने पढ़ा है तो उनको डाउट्स भी है। संजय वाचा एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो ये जो श्लोक है संजय बता रहे हैं, और इस श्लोक में अर्जुन के बारे में बता रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान को जो रथ है उसको दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए बोला, और भगवान अब उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएंगे। तो ये श्लोक है। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने बताया कि अर्जुन का जो नाम है वो गुडाकेश कह के उसको एड्रेस किया गया है। जैसे कि भगवान को ऋषिकेश, माधव और अलग अलग नामों से एड्रेस किया गया है, अच्युत ऐसे नामों से, इसी तरह अर्जुन को गुडाकेश कह के उसको एड्रेस किया गया है। तो माता जी का क्वेश्चन ये है, और गुडाकेश मतलब जो हु हैज कॉन्कर्ड ओवर स्लीप
is called Gudakesha. Gudakesh मतलब कि जिन्होंने अपनी निद्रा पे विजय प्राप्त कर लिया है। तो उनका क्वेश्चन है कि, और उसमें आगे श्लोक में ये समझाया है कि जो डिवोटी हैं वो 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं। तो इनका क्वेश्चन ये है कि रात को तो हम सो जाते हैं, तो कैसे कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे, कैसे हम भगवान को याद करेंगे जब हम सो ही गए? तो हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यस, तो अर्जुन का एक नाम, अर्जुन के कई नाम हैं और उसमें एक नाम है गुडाकेश। सो स्लीपिंग और इग्नोरेंस, ये जो है हमारे बॉडी का नीड है, हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे हम कृष्णा कॉन्शियस होते हैं तो एक डिवोटी का जो पूरा लाइफ है 24 आवर्स, वो क्या होता है, कृष्णा से कनेक्टेड होता है, कृष्णा कॉन्शियस होता है। अब आप बोलेंगे कि जब सोते हैं तब हमें कहाँ पता चलता है? तो डिवोटी जब जगता है, जब उसका जैसे सुबह जैसे डिवोटी उठते हैं तो वो अपना दिन शुरू करता है भगवान के रिमेम्बरेंस में, भगवान के ग्लोरीज में। फिर जो अपना सारा एक्टिविटीज करता है पूरे दिन, वो एक्टिविटीज भी क्या करता है, भगवान के प्लेजर के लिए। जैसे कि कुकिंग करता है तो वो भगवान को ऑफर करता है, पढ़ाई करता है तो उसका रिजल्ट भगवान को ऑफर करता है, या ऑफिस भी जाता है तो उसको भगवान को वो अपने फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क वो भगवान को ऑफर करता है। इसी तरह से अपना जो फैमिली है उसको भी एक कृष्णा कॉन्शियस वे में लीड करता है। अपना जो घर है उसको भी भगवान का एक टेम्पल बनाकर उस वैसे रखता है। तो उसका जो पूरा लाइफस्टाइल है वो कृष्णा कॉन्शियस होता है। अब जब वो रेस्ट करता है, इनका क्वेश्चन है कि जब रेस्ट होगा तब कृष्णा कॉन्शियस कैसे होंगे? तो जब एक डिवोटी रेस्ट भी करता है तो वो रेस्ट भी जो है वो कृष्णा कॉन्शियस, यानी कि जब सोता है तो वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है। क्यों? बिकॉज द पर्पज ऑफ दैट रेस्ट इज कि वी गिव रिक्वायर्ड रेस्ट टू आवर बॉडी। वो जो सोता है डिवोटी जब रात को भी, तो उसका पर्पज होता है कि जो रात को वो सोता है ताकि वो उठकर फिर से भगवान की सेवा को करे, ही सो दैट ही गेट्स द रिक्वायर्ड नरिशमेंट बाय स्लीप, जो भी उनको चाहिए, और वो क्या करे, दोबारा से भगवान के सर्विस में एंगेज हो जाए। तो उसका जो स्लीप है, उस स्लीप का पर्पस भी क्या है, टू एंगेज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो दैट्स व्हाई इवन व्हेन ही इज स्लीपिंग, उस स्लीप का पर्पस भी है टू गेट मोर एंगेज्ड इन सर्विस ऑफ कृष्णा। देयरफॉर उनका जो स्लीप है वो भी कृष्णा कॉन्शियस है। और इसके साथ जैसे आप में से कई लोग सोते हुए सपने देखते होंगे, तो कई बार सपना आता है कि एक शेर आ गया मेरे सपने में, और वो शेर जो है, हम एकदम डर गए और एकदम उठ गए और चिल्लाए कि आओ, हाँ, बट वो एक्चुअली शेर होता ही नहीं, करेक्ट। लेकिन जैसे हमारा माइंड है, तो हमारे माइंड में अभी एक्टिव माइंड है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और जो चीजें सारा दिन हम लोग डिस्कशन करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि जिस फ्रेंड का आपने डिस्कशन कर रहे हो, आपको एकदम से याद आया, तो काफी चांस है कि वो फ्रेंड आपके सपने में आ जाता है, या फिर आप कहीं पे, तो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है, उस सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज भरा है वो हमारे ड्रीम्स में आ जाता है। तो इवन एक डिवोटी जब ड्रीम भी लेता है तो उसका जो क्योंकि ही इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, ही इज ऑलवेज एंगेज्ड इन सर्विस ऑफ कृष्णा, वो हमेशा भगवान की सेवा में एंगेज रहता है, इसलिए उसका जो सबकॉन्शियस माइंड में भी सब कुछ जो स्टोरेज है वो भगवान से संबंधित है। तो उसको अगर सोता भी है तो वो क्या करता है, मेरे को कई सारे डिवोटीज ऐसे शेयर करते हैं, जैसे कई और डिवोटीज मुझे बताते हैं कि प्रभु जी कल रात को मुझे बहुत अच्छा सपना आया। तो क्या सपना आया? उस सपने में मैं ऐसे था, मैं वृंदावन गया था और वहाँ पे ऐसा हुआ, मैं वहाँ पे रूम में रुका था। सो डिवोटीज, जैसे एक जो बिजनेसमैन है उसको सपने बिजनेस के भी आते हैं कि क्या उसका कैसे धन और बढ़ेगा। तो एक डिवोटी का जो थॉट है वो पूरा कृष्ण में एब्सॉर्ब है। इसलिए एक डिवोटी जो है 24 आवर्स भगवान से कनेक्टेड है, चाहे वो सो रहा हो चाहे वो जग रहा हो। तो अर्जुन, बिकॉज ही इज इन टच विद कृष्णा, तो वो अपने जो इग्नोरेंस, तो जो एक साधारण व्यक्ति जब सोता है तो दैट इज पुटिंग हिम इनटू इग्नोरेंस। लेकिन एक भक्त के सोने का पर्पस भी क्योंकि भगवान की सेवा है, इसलिए ही इज कंसीडर्ड, हिज स्लीप इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज ए कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी। Does that make sense for you, Mataji? You understood this point? Sorry, you are on mute. If you have doubts, you can ask.
यस गुरुजी, मैं एक और चीज शेयर करना चाह रही थी। या मतलब हमारे इससे रिलेटेड नहीं है, बट मैं भी क्योंकि तब से भगवत गीता पढ़ने लगी हूँ, तो मुझे खुद काफी चेंजेस मतलब अपनी लाइफ में काफी मिल रहे हैं। मैंने कुछ टाइम पहले यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है, ओके और अभी मैंने टॉप किया 99.68 परसेंटाइल से। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो मैं बस वही शेयर करना चाह रही थी कि शायद इसी वजह से अभी अच्छे अच्छे लाइफ में सब चेंजेस हो रहे हैं। Okay, very nice. So congratulations. So what are you going to do with that next? Are you going to pursue PhD of where you I will want to do. pursue do that? आई एम लुकिंग फॉर दिल्ली। एक्चुअली मैं दिल्ली के पास में ही हूँ, Okay, तो इसीलिए। okay, very nice. So congratulations and I hope you आपका PhD में अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो and थैंक यू। I just completed my PhD from IIT Delhi और तो means I think it's good to if you can get you are from engineering side or what? No, I have done in education actually. Okay, I have done in education. फिर तो आपके अलग कॉलेजेस होंगे दूसरे। जी। Okay, but all the best. Thank you for sharing this. थैंक यू। Okay, so हम लोगों का जो गोल है वो है 24 hours connected to कृष्णा। जैसे उन्होंने क्वेश्चन, तो आप सोओगे भी तो आपका सोना भी जो है वो कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। सो इजी, हाँ, सो नाइस, इज इट नॉट? सोते सोते भक्ति हो रहा है, सो रहे हैं और उसको भक्ति में काउंट किया जा रहा है। ओके, नाइस। देन लेट्स हियर फ्रॉम सीमा माता जी। शी हैज सम क्वेश्चन आई थिंक। माता जी, आपका कोई प्रश्न है? अरे आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ जी, प्लीज बताइए। आवाज नहीं है। सॉरी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप ना अपना वीडियो बंद कर लीजिए तो शायद आएगा। वीडियो बंद कर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ जी, बताइए प्लीज, बोलिए, हम सुन पा रहे हैं। वो अभी थोड़ी देर पहले एक भाई पूछ रहे थे ना कि भाई किसी को हम कैसे बताए भगवान है या नहीं है, उस बारे में। तो अगर वो ये भी यकीन ना करे भाई गीता में प्रभु ने ऐसे ऐसे लिखा है, बहुत से लोग इसका भी यकीन नहीं करते हाँ प्रभु ने लिखा है ये। जी। और कितने ये भी यकीन नहीं करते भाई गोवर्धन पर्वत पे उठा लिया उन्होंने। जी। अगर वो इनसे ये पूछे, तो अगर वो इन बातों का भी यकीन नहीं करते तो फिर महात्मा गांधी आए थे, वो भी इतिहास में लिख रहा है। झांसी की रानी आई थी, वो भी इतिहास में लिखा हुआ है। तो फिर वे ये सोचे कि भाई ये भी नहीं थे, सब झूठ है। और जो बातें मतलब कुरुक्षेत्र की या हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की जो मतलब पहले शास्त्रों में लिखी हुई है, बहुत से लोग उन पे भी विश्वास नहीं करते थे, पर वो वैज्ञानिक उनको निकाल रहे और देख रहे हैं। जैसे द्वारकाधीश भी निकली है समुद्र के अंदर, और कुरुक्षेत्र में इतने बड़े बड़े वो गदा भी निकले हैं, बहुत बड़े बड़े इतनी चीजें निकल रही है। तो वो लोगों को ये बताए ना कि अगर ये कहाँ से आ रहे हैं, फिर आप अगर प्रभु को नहीं मानते तो ये कहाँ से आए, प्रभु नहीं थे तो। करेक्ट, तो आप सही बता रहे हैं। तो उसके प्रूफ्स अभी मिल रहे हैं। जो जिन लोगों को लोग माइथोलॉजी समझते थे, कल्पना की कहानियां समझते थे कि ये काल्पनिक कहानियां हैं, इनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है, वो काल्पनिक कहानियां नहीं थी, वो हिस्ट्री थी, ऐसे अभी प्रूफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तो यस, एक ये तरीका है उनको बताने का। लेकिन हम जो सेशन में डिस्कस करते हैं वो एक और बड़े लेवल पे, जो यूनिवर्स के लेवल पे, और जो साइंटिफिक रीजनिंग जो लोग चाहते हैं, जिस भाषा में वो जानना चाहते हैं, हम उनको उसी भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं कि यस, ये सब कारणों से भी आप समझ सकते हैं कि भगवान है। और ऑफ कोर्स जो आप बता रहे हैं कि हाँ, ये भी कारण है कि वो प्रूफ्स भी हम अभी मिल रहे हैं। लेकिन जो वैदिक नॉलेज है उसमें ये सारी जो वैदिक नॉलेज की जो सारी चीजें हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि इट हैज ए वेरी लॉजिकल रेफरेंस टू द रियलिटी। हमारा जो प्रेजेंट वर्तमान जीवन है उससे भी आप उसको बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने उस सेशन में कवर की हैं। उसके लिए एक एक्सक्लूसिव सेशन है,
और आप भी उसमें, हम इसी क्लास में उसको शेयर करेंगे कभी ना कभी। अभी हम कुछ सीक्वेंस में चल रहे हैं, देन वी विल शेयर दैट वन। ठीक है, बट थैंक यू फॉर योर पॉइंट, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है और उनको ये समझना चाहिए। लेकिन अगर कोई समझना ही नहीं चाहेगा तो आप उसको कितना भी समझाने का कोशिश करो, इफ ही डज नॉट वांट्स टू अंडरस्टैंड, तो फिर वो कोई अगर ऐसे इग्नोरेंस में ही रहना चाहता है तो फिर उसका वो चॉइस है। जैसे बताते हैं ना कि आपने घोड़े को पानी तक, तालाब तक तो ले आए, उसको पानी खुद ही पीना पड़ेगा। अगर वो समझना चाहेगा नहीं तो दो तरह का इंक्वायरी होता है। भगवान भगवत गीता में 4थे अध्याय में बताते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया अवतेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो जो इंक्वायरी है वो दो तरह का होता है, एक होता है सबमिसिव और एक होता है चैलेंजिंग। कई लोग प्रश्न पूछते हैं इस मन के साथ कि वो जानना चाहते हैं। जैसे अभी दुष्यंत प्रभु ने क्वेश्चन पूछा था, तो उनका जो इंक्वायरी है वो सबमिसिव है, यानी कि जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों है, मैं उन लोगों को कैसे बता सकता हूं। तो इसको बोलते हैं सबमिसिव इंक्वायरी। यानी कि तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो सबमिसिव इंक्वायरी करेगा वो समझ भी पाएगा फैक्ट को। लेकिन कई लोग होते हैं जो चैलेंजिंग इंक्वायरी करना चाहते हैं, उनका केवल पर्पस ये तर्क वितर्क, वो फिर भगवान को कभी समझ नहीं सकते, है कि नहीं। सो बट वी विल ट्राई टू शेयर एंड एक्सप्लेन टू एवरीवन पॉसिबल। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अब हम चलते हैं बुल्टी बारी जी के पास। आपका जो प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, और आप सबसे फिर प्रार्थना करेंगे हो सके तो वीडियोस ऑन रखें। बस हम 1-2 प्रश्न और लेंगे आज का सेशन को हम। यस प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। बुल्टी बारी, आपका कुछ प्रश्न है तो प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, बताया गया हम लोग को जो करना है वो एज अ सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्ण करना है। तो एक्चुअली आई एम एन नर्सिंग स्टूडेंट नाउ, सो व्हेन आई एम वर्किंग इन द हॉस्पिटल, I feel that I am serving to Lord Krishna. As such, I am motivated. But when we came in the hostel, there is a lot of distraction. I cannot study properly. How can I motivate? I am studying for Lord Krishna. How can I do that? Please tell me. So sorry, आपको जितना मैं समझ पाया, you are working in a hospital, is that? Yes, Prabhuji. You are working in a hospital. Can you say it again? Can anyone understand the question? I cannot understand the. आप अपने क्वेश्चन को रिपीट करेंगे? What I understood from your question is कि आप जब हॉस्पिटल में लोगों को सर्व करते हैं तो आपको लगता है कि आप सर्विस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है? Can you please repeat your question? अनम्यूट करके क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं आप प्लीज? Actually, Prabhuji, when I am working in the hospital area, I feel that I am working for Lord Krishna. But when I am studying, I don't motivate that I am working for Krishna, because these are related to medical terms, medical drugs. There is a basic idea. There is allergic reaction, some of that. ओके, नाउ आई गॉट योर क्वेश्चन, थैंक यू। तो इनका प्रश्न है कि जब वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, आई थिंक वो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, और जब वो अपना पढ़ाई करते हैं मेडिकल का तो उनको समझ नहीं आता है कि उसको भगवान से कैसे कनेक्ट करें। तो अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में लड़ाई कर रहे हैं, महाभारत के युद्ध में, तो अर्जुन कह रहे हैं क्या, अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च। तो अगर आप देखेंगे कि अर्जुन का जो काम है वो लोगों को मारना है, he has to kill people, right? And even that activity is Krishna conscious. भगवान उसको क्या कह रहे हैं कि you do your duty and you remember me. तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है
सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये कह रही हैं कि जब ये कॉलेज की पढ़ाई करती हैं, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करती हैं, तो उनको लगता नहीं है कि वो भगवान से कनेक्ट कर पा रही हैं उसको. सो व्हाट इज द प्रोसेस? तो जैसे मैंने बताया कि एक डिवोटी का जो पूरा लाइफ है वो कृष्णा से कनेक्टेड होना चाहिए. तो अगर आपका सबसे पहले तो जो आपका पढ़ाई है, जब आप उसको करते हैं, यू कैन बिकम ए वेरी नाइस डॉक्टर. मुझे तो समझ आया है कि आप डॉक्टरी का पढ़ाई कर रही हैं, अगर मैंने आपको सही सुना है तो यू कैन बिकम ए वेरी नाइस डॉक्टर. एंड व्हेन यू बिकम ए डॉक्टर, आप लोगों को अच्छे से उनको ठीक कीजिए, उनको अच्छा से मेडिसिन दीजिए, एक ऑनेस्ट डॉक्टर बनिए, एक ऑनेस्ट डॉक्टर बनिए, उनको मेडिसिन दीजिए. और फिर जब आप उनको मेडिसिन दें तो एज ए डॉक्टर यू कैन ऑल्सो टेल देम दैट आई कैन ऑल्सो गिव यू ए स्पिरिचुअल मेडिसिन. आप उनको हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बता सकते हैं, आप उनको चैंटिंग के बारे में बता सकते हैं. आई हैव मैनी डॉक्टर फ्रेंड्स जो कि डॉक्टर भी हैं, क्योंकि when doctor gives advice to a patient, it is very important for the patient. तो एज ए डॉक्टर आप उनको बहुत अच्छा एडवाइस दे सकते हैं कि कैसे वो भगवत गीता को रीड कर सकते हैं. तो इस तरह से जो आपका ऑक्यूपेशन है उसको आप है ना, उसको आप भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, जब आप अपना मॉर्निंग में, तो जो डिवोटीज हैं जिनको पूरा दिन कृष्णा कॉन्शियस जो रहना चाहते हैं, उनके लिए उनके पास एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है और वो हम सब कर सकते हैं. और वो पॉइंट क्या है कि हम लोग मॉर्निंग में अपने टाइम को कृष्णा कॉन्शियस बनाएं. जैसे कि एग्जाम्पल, आप अपने फोन की बैटरी को चार्ज करते हैं, घर से निकलने से पहले आप अपने फोन को पूरा चार्ज करते हैं, और फिर वो पूरा दिन जो है बातें होता है, व्हाट्सएप यूज होता है, धीरे 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 डिस्चार्ज होता रहता है, और रात को जब आ जाते हैं तो फिर आपका फोन काफी कम रह जाता है बैटरी, और सुबह ऑफिस जाने से पहले आप उसको फिर से चार्ज कर लेते हैं. करेक्ट? तो जब तक आपका बैटरी चार्ज है तो थोड़ा थोड़ा सा डिस्चार्ज भी होता रहता है जब आप कॉल करते हैं, लेकिन आपका फोन चलता रहता है. इसी तरह से जब आप एक जो डिवोटी है, जो एक सीरियस डिवोटी है, सिंसियर डिवोटी है, वो क्या करता है, वो मॉर्निंग में अपने आप को पूरा चार्ज कर लेता है कृष्णा कॉन्शियसनेस से. कैसे चार्ज करता है? डिवोटी जो है सुबह जल्दी उठते हैं. हम बोलते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज. तो भक्तों का एक क्वालिटी है कि वो सुबह के टाइम को बहुत अच्छे से यूज करते हैं. अब आप सुबह अगर जल्दी उठेंगे, आप सुबह उठ के थोड़ा सा भगवत गीता को रीडिंग कर सकते हैं. सुबह उठकर आप हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं, मंत्रा मेडिटेशन कर सकते हैं. तो आपका जो पूरा कॉन्शियसनेस है वो कृष्णा कॉन्शियस होगा. और उसके बाद आप जो भी एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि आप कॉलेज में जाएंगे, मेडिकल बुक्स की पढ़ाई करेंगे, या अपने हॉस्टल में रहेंगे, सो देन your studies, you will still be able to be Krishna conscious, even though you are studying a material stuff. Still, because you are already, your morning has been very strong, जैसे आपका बैटरी चार्ज हो चुका है कृष्णा कॉन्शियस, देन योर होल डे कैन रिमेन कृष्णा कॉन्शियस. इनफैक्ट आप पूरा दिन कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं. और आपके हॉस्टल रूम में यू कैन कीप ए स्मॉल पिक्चर ऑफ कृष्णा. आप भगवान का एक छोटा पिक्चर रख सकते हैं. यू कैन ऑफर सम flowers to Krishna if you have, or even if you don't have flowers, you can just offer your pranam to Krishna, like that. If you, so similarly in your house or in your room you can put some pictures of Krishna, that will help you to remember Krishna. क्योंकि हम जो है, हमारा जो टेंडेंसी है वो कृष्णा को फॉरगेट करने का है, भूलने का है. लेकिन ऐसी प्रैक्टिसेस से, जैसे कि सुबह जल्दी उठ के चैंटिंग करना, ये सारी प्रैक्टिसेस हमें पूरा दिन कृष्णा कॉन्शियस रहने के लिए हेल्प करेगा. फिर आप अपनी स्टडीज को भी, और जब आप पढ़ाई करें तो आप उससे पहले भगवान को प्रे कर सकते हैं कि आई एम स्टडिंग दिस मटेरियल नॉलेज, प्लीज हेल्प मी टू एंगेज मी इन योर सर्विस. भगवान आप मुझे हेल्प कीजिए ताकि मैं अपने आप को आपकी सेवा में एंगेज कर पाऊँ, लाइक दैट. सो देन even your medical study will become Krishna conscious, like that. Okay, so that is the formula. Formula is to get up early and make your morning very strong. Morning is strong Krishna conscious, then the whole day will be. आप अपना अगर सुबह को अच्छे से Krishna conscious बनाएंगे तो पूरा दिन Krishna conscious रहेगा. Does that answer your question?
Bulti Bari Mataji, is that answers your question? Prabhuji, thank you. Thank you so much. I Okay, am actually a nursing student. sorry, I am a nursing student, sir. you're a nursing student. Yeah, whatever. Yeah, nursing or a doctor. Yeah, thank you. Thank you, Prabhuji. Okay, next question. Let's say last 2 questions for today. आज के आखिरी 2 क्वेश्चन और उसके बाद फिर हम लोग विराम देते हैं. Rekha Mataji has some question. Only Matajis have question. Prabhujis, they are all intelligent. Okay. Yes, please. I can't hear. Sorry. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, आपका कोई प्रश्न है? नहीं सुनाई दे रहा है. ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम अभिक प्रभु. यस अभिक प्रभु, प्लीज डू आस्क. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा. यस प्रभु. प्रभु जी, मैं कह रहा था कि जैसे हमारे जितने भी रिलेशनशिप है इस मटेरियल वर्ल्ड में सारे कंडीशनल है ना. जैसे कुछ कंडीशन अप्लाइड है, जैसे कहीं भी जाना है तो यूनिफॉर्म पहन के या कुछ करना है तो ये करके. लेकिन कृष्णा के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो अनकंडीशनल है ना. अनकंडीशनल, जैसे कोई उसमें कृष्णा जैसे वो सबको इक्वली लव करते हैं, मतलब आप कुछ भी गलती करे या ना करे. तो मैं वही पूछना चाहता था कि मान लीजिए हम लोगों से कभी कभी जैसे गलती हो जाता है, जैसे कभी कभी मान लीजिए सात्विक फूड अगर नहीं हो पाए कहीं इस तरह से, तो रात को जैसे तो सुबह को क्या कुछ ऐसे मतलब नियम है कि माला जप करने से पहले कि मतलब कुछ नहा के या कि चेंज करके माला जप कर सकते हैं कि ऐसे ही मतलब कर सकते हैं कभी? ओके, नाइस क्वेश्चन. तो थैंक यू प्रभु. योर क्वेश्चन इज नाइस. सो जप करने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने के लिए कोई भी नियम नहीं है. यानी कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको सुबह नहा कर जप करना है या फिर, हालांकि अगर आप नहा करके जप करते हैं तो आप ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे, आप ज़्यादा क्लीन फील करेंगे और वो आपकी चैंटिंग को हेल्प करेगा. लेकिन चैंटिंग के लिए नहाना आवश्यक नहीं है. पहली बात तो ये है. दूसरी बात, तो आई थिंक ये आपका एक प्रश्न था. दूसरी बात, आपने पूछा कि हम नॉन सात्विक फूड खाएं अगर, तो विल कृष्णा लव अस अनकंडीशनली? सो यस, कृष्णा लव्स अस अनकंडीशनली, करेक्ट. बट फॉर एग्जाम्पल ए फादर और ए मदर, वो भी अपने सभी संतानों को अनकंडीशनली लव करते हैं. लेकिन नेचुरली अगर कोई संतान उसमें से, सपोज एक पिताजी के 4 बेटे हैं, तो पिताजी चारों बेटों को इक्वली प्रेम करते हैं. लेकिन अगर उसमें से एक बेटा बहुत अच्छा करे, पिताजी का बहुत अच्छे से ध्यान रखे, अपने घर को साफ रखे और बहुत अच्छे से व्यवहार हो, बहुत अच्छा उसका नेचर हो, तो डेफिनेटली उसके पिता उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे. और एक बेटा जो है वो बिल्कुल ड्रिंक करता है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लोगों से लड़ाई करता है, तो हालांकि वो पिताजी होने के लिए वो सबको लव करते हैं, पिताजी के मन में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. लेकिन बाय हिज ओन एक्टिविटीज he develops a kind of place in the heart of father. तो पिताजी जो है एक व्यक्ति को अपने ही 4 बेटों में से एक बेटे को बोलेंगे कि ये बेटा बहुत अच्छा है, और ये दूसरे बेटे को बोलेंगे कि ये बेटा बिल्कुल नालायक है. So like that, so Lord loves us all, correct? And but then Lord says in Bhagavad Gita, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथे भजामयम. भगवान बताते हैं कि I am accessible or I reciprocate with a person according to his approach to me. भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरे को जिस तरह से अप्रोच करता है मैं उसको वैसे रेसिप्रोकेट करता हूँ. तो अगर कोई व्यक्ति हमेशा भगवान की दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जो भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दिया है भगवत गीता में, जैसे कि भगवान ने बोला है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, डेफिनेटली भगवान जो
ये अगर सपोज कोई नॉन वेज खा रहे हैं या इस तरह से कोई अगर फूड ले रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट्स नॉट प्लीजिंग टू द लॉर्ड, है ना। भगवान के आप संतान हैं, हम सब भगवान के संतान हैं, लेकिन उसमें भी जो लोग भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली दे विल बी मोर डियर टू द कृष्ण, मोर डियर टू द लॉर्ड, मोर डियर टू कृष्णा। इसी तरह से तो आपने बताया कि यस, अगर आप कोई सात्विक फूड नहीं भी ले रहा है तो भी भगवान उसके वेलविशर हैं, लेकिन डेफिनेटली भगवान उसको ज़्यादा प्रेम करेंगे, उसको ज़्यादा पसंद करेंगे जो व्यक्ति उनकी बात को फॉलो कर रहा है। जैसे कि स्कूल में भी इतने सारे बच्चे होते हैं, एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, लेकिन टीचर किसको ज़्यादा लाइक करता है? उस बच्चे को लाइक करता है जो होमवर्क करके आता है, जो अच्छे से बिहेव करता है, जो क्लीन ड्रेस पहनता है, क्योंकि वो अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको अच्छे से यूज़ कर रहा है। एक बच्चे के पास इंडिपेंडेंस होता है कि वो ठीक है, टीचर ने दिया, उसको अच्छे से नहीं भी करके आता है कई बार काम को, लेकिन जो बच्चा अच्छे से करके आता है उसको टीचर नेचुरली ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसी तरह से भगवान सबके लिए बराबर हैं, उनका जो हमारे लिए लव है वो हर सिचुएशन में है, लेकिन जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, भगवान भी उनके साथ उतना ही ज़्यादा रेसिप्रोकेट करते हैं। और ये भगवान इसके लिए ओपनली इसको बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, जैसे आप मेरे को अप्रोच करोगे वैसे मैं आपको रेसिप्रोकेट करूंगा, राइट। तो हमें वो चीज़ें करना चाहिए जो भगवान ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, और उन चीज़ों से बचना चाहिए जो भक्ति के विरुद्ध है। इसलिए बोला अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भक्ति के अनुकूल है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो भक्ति के प्रतिकूल है, अगेंस्ट है, उसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए। Does that answers your question, Abhik Prabhu? Yes, Prabhuji. Very well explained. You have very well explained. Thank you, Prabhu. Nice to hear from you. Okay, so then I see a lot of messages in chat. I have not read them, any one of them. Just give me 1 second. May I vibe? So next question is, Hare Krishna, my focus is not full even as I do. My focus is not full even as I do as to Krishna. How to do it? Distraction instead. So here question. Okay. So I could not get your question, Mataji. Can you please speak out, Geeta Mataji? I know it's your question. So, sorry, you are on mute, Mataji. Can you unmute, please? Can you please unmute? I can't. Sorry, or maybe I can't hear you. Maybe some technical issue. But then I can read your question. तो इनका क्वेश्चन ये है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, कि अगर मैं शायद भक्ति भी करने का प्रयास कर रही हूँ तो उसमें डिस्ट्रैक्शन भी होगा. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम द क्वेश्चन. Distraction in studying. So this material world is a place of distraction. इस material world में distraction ही होता है because we are not in a conducive environment. ये जो material world है, this is a place for called dukhalyam ashashvatam. Here we see everything is it is like material world में रह के भक्ति करना, it is like swimming opposite the current. जो जैसे नदी का पानी बह रहा है उससे अपोजिट दिशा में चलने वाला बात है. सो इट इज नॉट ए इजी वॉक, बट द गुड पार्ट इज दैट वी हैव वेरी गुड फैसिलिटीज to practice Krishna consciousness by the mercy of great acharyas. So one of that facility is the association of devotees. तो जब हम devotees के साथ ज़्यादा associate करेंगे, we try to do bhakti with the devotees, together with the devotees, then that makes it easier. तो जो हमारा distraction है, जो भी shortcomings है भक्ति में, they become easy to overcome, and we derive inspiration from each other. Because sometimes we feel little weak. Oh my God, I am not able to do, I am not able to get up early, I am not able to chant. So if we have some good devotee friends and we are with them, तो हम उनसे inspiration drive कर सकते हैं. इसलिए हम सब लोग सुबह एक साथ में chanting करते हैं ग्रुप में.
तो आप में से जो लोग उस ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहें, आप उसमें चैंटिंग के लिए 5 to 7 o'clock हम लोग सुबह जो एक ग्रुप है जिसमें जेंट्स प्रभु जी चैंटिंग करते हैं, एक ग्रुप है जिसमें माता जी चैंटिंग करती हैं। माता जी का चैंटिंग जो है 5:30 to 7 होता है और प्रभु जी का 5 to 7 होता है। तो मैं अमरजीत बू को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ग्रुप्स के जूम आईडी यहाँ पे भी डाल दें और आपके व्हाट्सएप। सो टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। So distractions try to take us away from Krishna, and the association of devotees tries to bring us closer to Krishna. So इसलिए the secret is of success is let us together practice bhakti. It will be easier, and distractions will come. So we have to tell our mind, "Hey mind, I am not going to listen to you anymore because I am listening to devotees." So then the distractions will not harm us very much, or they will not hurt us, or they will not be able to shake our Krishna consciousness. Okay, Mataji, does that answer your question? Thank you very much. I see your hands. Okay, next question, very quickly. May I buy Bhagavad Gita from as it is from Amazon? Yes, you can. Please buy, and you can also give a request to one of our co-host if you want to take from them, right? Okay, someone is already replying, better buy from ISKCON. Okay, good. Okay, attendance link, attendance don't is ISKCON on. Okay, I think okay, your question was from a student. Okay, Geeta Mataji says this question was from a student. Okay, thank you. But the answer is again, yeah, same. Okay, good. Okay, then I think we are done with the questions, and we will send you the chanting links in your WhatsApp group. हम आपके WhatsApp group में आपको chanting का लिंक भेज देंगे, and we will soon have one session on art of chanting. हमें chanting कैसे करना है उसके ऊपर एक complete session होगा जल्दी. So then we will announce about that also. Okay, so with that, okay, one more hand is raised, last one, and then we will not take more questions. Anjali Mataji, you have some question or some information? आवाज आ रही? हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, प्लीज बोलने का कोशिश कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्लीज। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रहा है। प्रभु जी, जैसे कि हम लोग जैसे ना चाहते हुए भी हमारे से हो जाता है प्रभु जी, जो कि मतलब कि कृष्ण के ही अंश है जीव। तो प्रभु जी, वो लोग तो बहुत सारे हत्या करते हैं, तो उसे कैसे बचे उससे? कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? कौन हत्या करता है? सॉरी, नहीं समझ पाया आपका क्वेश्चन। अगर किसी और को समझ आया तो प्लीज मुझे बताइए। एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। प्रभु जी, जैसे कि कृष्ण के ही अंश सारे जीव है, और अगर हमारे से अगर जीव की हत्या होती है तो उससे हम लोग कैसे बचे? ओके, सो यस, कृष्णा जो है सभी जीवों के पिता हैं। कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं अहम बीज प्रदापिता। कृष्णा जो है गाय के भी पिता हैं, ह्यूमन बीइंग के भी पिता हैं, एक इंसेक्ट के भी पिता हैं। कृष्णा जो है सबके पिता हैं। तो एटलीस्ट इंटेंशनली हमें किसी लिविंग एंटिटी को किल नहीं करना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे हमने बताया कि आप इवन कुकिंग करने का कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, करेक्ट? सो देयरफॉर इसीलिए हम जो भी भगवान से इंडिपेंडेंट होकर हम जो भी चीजें करेंगे उसमें जो भी ये किलिंग होगा, जो भी उसमें हमारे से जो विकर्म हो जाएगा, दैट वी विल हैव टू पे फॉर इट हेवीली। लेकिन अगर हम भगवान के सर्विस में लगे रहेंगे और भगवान के सर्विस में एंगेज रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुकिंग ही कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम मीट
बना के खाएंगे या अंडा बना के खाएंगे। अगर आप एक वेजिटेरियन फूड को कुक कर रहे हैं तो उसमें भी जब आप गैस चलाते हैं तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल होते हैं एंड सो ऑन, लेकिन क्योंकि यू आर डूइंग दैट फॉर सर्विस ऑफ कृष्ण, आप उसको बना के भगवान को ऑफर करेंगे, दैट फूड बिकम्स फ्री फ्रॉम कर्मा, लाइक दैट। तो जो भी चीज, सबसे पहले इंटेंशनली हम किसी लिविंग एंटिटी को किल नहीं करेंगे, और जो एक हमारे बेसिक नॉर्मल कोर्स ऑफ सस्टेनेंस में ये जो एक्टिविटीज आएगा जैसे कि कुकिंग, वो सारा चीज हम क्या भगवान को ऑफर करेंगे, दैट विल बिकम फ्री फ्रॉम कर्मा। सो लाइक दैट वी कैन सेव आवर सेल्फ, देयर इज नो अदर वे। अदरवाइज दैट्स व्हाई दिस मटेरियल वर्ल्ड इज सो कॉम्प्लेक्स कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम अपना कर्म इकट्ठा करते जाते हैं, बार बार एक कर्म से छूटते नहीं है, पहले दूसरा विकर्म और आ जाता है। सो इट्स अ विशियस साइकिल, सो वी हैव टू सेव आवरसेल्फ एंड द ओनली प्रोसेस इज टेकिंग फुल शेल्टर ऑफ कृष्णा। केवल एक ही प्रोसेस है इससे बचने का, दैट इज टू टेक फुल शेल्टर ऑफ कृष्णा। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ everything, you know, he says that I will deliver you from all sin, aham tvam sarva papebhyo mokshishami ma sucha। मैं आपको सभी पापों से क्या करूंगा, मुक्त कर दूंगा। किसको? जो कि भगवान का शेल्टर लेंगे, जो भगवान का पूरा शेल्टर लेंगे 100%, उनको 100% भगवान सभी पापों से मुक्त कर देंगे। तो यस, अनइंटेंशनली वी विल नॉट किल समवन। और बाकी जो हमारे, अब जैसे आप वॉक करते हो, आप पैदल चलते हो, पैदल चलने में आपके पाँव के नीचे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, सो यू कांट कंट्रोल दैट। लेकिन इफ योर लाइफ इज फॉर कृष्णा, लाइफ इज सरेंडर टू कृष्णा, देन ही विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल द सिंफुल रिएक्शंस। सो हमें करना क्या है, अनइंटेंशनली नहीं करना है, और अपनी लाइफ को पूरा कृष्णा कॉन्शियस बनाना है। जब हमारा लाइफ पूरा कृष्णा कॉन्शियस होगा तो भगवान हमें हर प्रकार के पाप से मुक्त करेंगे। दैट इज द ओनली होप, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, यू नो, करेक्ट? ओके, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन अंजलि माता जी? I can't see you maybe or hear you. Okay, thank you. Two more questions, but okay, I'll just try to answer in one line, and then we will not take more questions, please. After this, I have another engagement. Yes, Sheila Mataji, please. प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम माता जी। Yes, please. क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि मतलब इंटेंशनली हमें किसी को नहीं मारना है, पर प्रभु जी जैसे मेरे तो किचन में बहुत सारे कॉकरोचेस हो जाते हैं छोटे छोटे, और वो बहुत मल्टीप्लाई होकर मतलब हर जगह वो किचन में होते हैं, या जैसे घर में हमारे मकड़ी के जाले जो लग जाते हैं, तो हमें उसमें मतलब क्या करना चाहिए? क्या हमें जाले नहीं हटाने चाहिए, या मतलब या किचन में जो इतने सारे कॉकरोचेस घूमते रहते हैं और वो खाने में भी आते हैं, तो मतलब उसमें क्या करना चाहिए? अब इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ उसको क्या करूँ, क्योंकि हर वक्त मैं पेस्ट कंट्रोल कराती हूँ, तो पेस्ट कंट्रोल में जाते हैं, बट उसके बाद वो फिर आ जाते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें? So that's why our great acharyas, you know, they have said, हमारे महान आचार्य लोगों ने बोला है कि this material world is not a fit place for a gentleman। ये जो भौतिक जगत है, ये एक्चुअली एक जेंटलमैन के लिए, या जो एक बहुत अच्छे से अपना सभ्य तरीके से जीवन जीना चाहते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एक डोर ओपन है, आई एम हियरिंग लॉट ऑफ साउंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Sorry, yeah. So this material world is not a fit place for a gentleman, I was saying। यानी कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से अच्छा जीवन जीना चाहता है, उसके लिए, तो इसलिए डिवोटीज वांट नॉट टू एंटेंगल अगेन एंड अगेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। डिवोटी का क्या गोल होता है कि इस लाइफ को इतना अच्छा से परफेक्ट कर लो कि दोबारा इस मटेरियल वर्ल्ड में मुझे
जन्म ना लेना हो। डिवोटी वांट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड है। डिवोटी जो है भगवान के धाम वापस जाना चाहता है, जहाँ पे ये सब प्रॉब्लम नहीं है, कॉकरोच, जाले, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि हम भगवान के धाम जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये सारे क्लेश हैं ही नहीं। पहली बात तो ये। और दूसरा, प्रैक्टिकल टर्म्स में अभी के लिए ऑफ कोर्स आप अपने किचन को जितना हो सके साफ रखिए। ऐसा कुछ नेट लगवाइए या कुछ ऐसा कीजिए कि कॉकरोचेस ना आए। आई डोंट नो, समटाइम इन ओल्ड कंस्ट्रक्शन ये बहुत मुश्किल होता है। सो आई वॉन्ट से टू किल द कॉकरोचेस, बट यू फाइंड सम बेटर सॉल्यूशंस। maybe try to renovate it little bit कि cockroaches आ ही ना पाए, something like that. But as I said, this place is not a fit place to practice. But the good part is that we focus more on the positive side of the things कि हम कैसे कृष्णा conscious बन पाए ज़्यादा, and then Krishna takes care of us. Otherwise it's very difficult. I agree, it is so difficult to padam padam yat vipadam, every step there is a danger. So the only solution is कि आप ये डिटरमिन कर लीजिए कि इस लाइफ में मुझे कृष्णा कॉन्शियस पूरा बनना है, एंड कृष्णा विल प्रोटेक्ट अस, कृष्णा विल गिव अस ऑल सॉल्यूशंस. Yeah, we should pray to the Lord. Yeah. Yes, Thank you very much. And last of the last, बलदेव प्रभु. बलदेव प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? बलदेव प्रभु, आपका कोई प्रश्न है तो अनम्यूट कर सकते हैं, आपका हैंड रेस है, अदरवाइज वी विल स्टॉप. I can't hear him. So yes, thank you very much. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. Many thanks to all of you. I think many of you are so sincere कि आप हर हफ्ते बिल्कुल टाइम पे आते हैं और बिल्कुल पूरा समय तक रुकते हैं. It is so surprising, so amazing, and some of you are even joining from different countries and different part of the world. So I am and thank you for giving me this opportunity. आप सब मुझे ये opportunity दे रहे हैं कुछ शेयर करने का, और this is also helping me to think about my own Krishna conscious journey. So once again, a very happy Holi. I will pray to the Lord that your life is full with colors and happiness, और जो आप लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है आप सब उसकी तरफ और आगे बढ़ें. और माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप सब इसको पढ़िए साथ साथ. भगवत गीता का चैप्टर 1 हम खत्म कर चुके. आज मैंने चैप्टर 2 इसीलिए शुरू नहीं किया कि आप लोगों का क्वेश्चंस होगा, तो बट मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ पाए बिकॉज ऑफ मे बी फेस्टिवल और व्हाटएवर. लेकिन अगली बार आपको पिछले सेशन का सारा जो मैंने स्लाइड्स दिखाया था और जो सारा रिकॉर्डिंग है वो सब भेज दिया गया था ऑलरेडी. तो अगले बार आप सब प्लीज पढ़ के आइएगा, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा, आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. हाँ, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय. जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंद. थैंक यू.